everyone, welcome to my class. Again I am here with the new accountancy video of class 11th. In this video we are going to start chapter number 3, accounting principles. Accounting principles starts from the theory base of accounting. Now what is the theory base of accounting? Theory base of accounting means the principles, the concepts, the conventions, rules and guidelines which have been developed over a period of time to bring uniformity and consistency to the process of accounting. Dear students, whenever we are making accounts, we use some kind of principles, some concepts, some conventions, rules or guidelines which provide us the guideline, which provide us the path of moving into the accounts. इट मीन्स जब भी आप अकाउंट्स बना रहे हैं तो अकाउंट्स बनाते वक्त आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, कुछ थ्योरीज को फॉलो करना होता है. तो ऑल दोज थ्योरीज, ऑल दोज प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आर collectively known as the theory base of accounting. So we can say, what is theory base of accounting? Theory base of accounting refers to the theories, the basis, the principles which provide the action, which provide the guide to action into accounting. यानी accounting में हमें accounts कैसे बनाने हैं, किस basis पर बनाने हैं, ये सारा काम हमें कौन बताता है? theory base of accounting. तो theory base of accounting में generally आता क्या है? principles, concepts, conventions, rules and guidelines, और जिन्हें डेवलप किया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग, किस कारण से? यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, अकाउंटेंसी में कंसिस्टेंसी लाने के लिए, ताकि सब लोग उन्हीं थ्योरीज को फॉलो करें और उनके अकाउंट्स में एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो सके. यू शुड बी एबल टू कंपेयर योर अकाउंट्स विद सम अदर कंपनीज और अदर फर्म्स अकाउंट्स. सो दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स विल बी फॉलोड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. नाउ the concept is accounting principles. So theory base of accounting consists of the accounting principles. Now what are the accounting principles? Accounting principles are uniform set of rules and guidelines which have been developed to ensure uniformity and easy understanding of the accounting information. These rules are usually called generally accepted accounting principles. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बच्चों क्या होती हैं? ये वो प्रिंसिपल्स, ये वो रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो कि सभी अकाउंटेंट्स को अकाउंट्स बनाने में एक यूनिफॉर्म मेथड प्रोवाइड करवाते हैं, एक यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रोवाइड करवाती हैं. जब सभी अकाउंटेंट्स एक जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अकाउंट्स बनाएंगे तो इससे क्या होगा? उन सब के अकाउंट्स को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज मिलेगी, उन सब के अकाउंट्स को आपस में कंपेयर किया जा सकेगा, उन सब के अकाउंट से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सकेंगे. बट दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द अकाउंटेंट्स फॉलो द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल. सो वी कैन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जो कि बनाए गए हैं एक यूनिफॉर्म मैनर में, जो कि सभी बिजनेसमैन उसको सेम तरीके से अप्लाई करते हैं. तो ये हमें एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रोवाइड करवाते हैं. दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. जनरल एक्सेप्टेंस हियर मीन्स दैट ऑल द अकाउंटेंट्स विल फॉलो दीज प्रिंसिपल्स इन द सेम मैनर एंड दे विल मेक द अकाउंट्स using these accounting principles in the equal manner. So now we have the nature or the characteristics of accounting principles. What are the features or nature of accounting principles? Now first one is uniform set of rules. As we have already discussed, accountancy is uniform set of rules. In accounting we use the uniform set of rules while making the accounts. An accountant keep in mind various accounting principles. He follows the accounting principles like the other follows. तो सभी accountants जब same set of rules को follow करेंगे accounts बनाने में तो उससे accounts में क्या आएगी बच्चों? uniformity आ जाएगी. So we can say that accounting principles, क्योंकि सभी businessmen same accounting principles को follow करते हैं, क्योंकि accounting principles हमें एक standard language provide करवाते हैं और इससे क्या होता है? हमारे business के accounts में यूनिफॉर्मिटी रहती है. तो वी कैन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स. सेकेंड इज मैन मेड. नाउ व्हाट इज मैन मेड? मैन मेड मीन्स कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर प्रिपेयर्ड और मेड बाय द ह्यूमन बीइंग आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड हिज फेसिंग ऑफ द डिफ़िकल्टीज. यानी अकाउंटेंट्स के सामने जब कोई डिफ़िकल्टी उनको फेस करनी पड़ी वाइल मेकिंग द अकाउंट्स तो उन्होंने उसका सोल्यूशन ढूंढा. उसका सोल्यूशन ढूंढते हुए उनके सामने कुछ प्रिंसिपल्स बनते गए. तो ये प्रिंसिपल्स कैसे बने हैं? ये ओवर द टाइम उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं और रीज़न के बेस पर. रीज़न के बेस पर मीन
means whenever they face some difficulty, whenever they face some problem, they try to find out the solution of that problem. So finding out the solution of the problem is known as the reason. So whenever they are going through the reasoning process, then they develop some rule, they develop some principle, and that is known as the accounting principle. So we can say that accounting principles are man made, but these are man made. Since these are man made, so these cannot be laboratory tested. हम इसे साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह जो है लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते, हम इनकी जो जेन्यूनिटी है उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं. बस ये रूल बन गए हैं और इनको हम अपने अकाउंट्स में फॉलो करते जा रहे हैं, एंड बाय द टाइम दे कैन बी चेंज. इनको चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर. Okay, now we have the next feature, that is flexible. Now what is flexible? Accountancy principles are flexible in the manner that they are not rigid. Means एक बार जो प्रिंसिपल बन गया हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ओवर द टाइम चेंज किया जा सकता है. कैसे चेंज किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी. जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी ले आया, तो जो पहले टैक्सेस अप्लाई होते थे, हम अकाउंट्स बनाने में जो ऑक्ट्रॉय, जो एक्साइज ड्यूटी, इस तरह के कुछ टैक्सेस को यूज़ करते थे बच्चों. वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, इस तरह के टैक्सेस को यूज़ किया जाता था वाइल मेकिंग द अकाउंट्स. बट गवर्नमेंट की जब पॉलिसी चेंज हुई, गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट पास किया, जीएसटी एक्ट, तो उसके बाद से वो सारे पुराने टैक्सेस को हमने लगाना बंद कर दिया, एंड वी स्टार्टेड यूजिंग जीएसटी कंसेप्ट, है ना. तो इस तरह से जैसे जैसे कोई भी चेंज आता है सिचुएशन में, सर्कमस्टांसिस में, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज आता है, तो इन प्रिंसिपल्स को चेंज किया जा सकता है, कर दिया जाता है. सो वी कैन से दैट दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें चेंजेबिलिटी का एक फीचर पाया जाता है. ऐसा नहीं है कि एक बार जो प्रिंसिपल बन गया सो बन गया, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिंस मैन मेड है, एक मैन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, अकाउंटिंग में हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं. दैट इज़ वाई according to the situation, according to the need of or requirement of the situation, we can change the accounting principles, or we can say these principles can be changed. Next is generally accepted. Accounting principles are generally accepted. Generally accepted means each and every accountant will accept it while making the accounts. जब भी कोई accountant accounts बनाएगा, वो इन principles को follow करेगा. He will accept these principles because these are made after the experience, after the reason of various accountants. Now the general acceptance include the 3 points. First is relevance, second is objectivity, and third one is feasibility. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड तभी कहलाएंगे जब उनमें रेलेवेंस का फीचर होगा, ऑब्जेक्टिविटी का फीचर होगा, एंड फिजिबिलिटी का फीचर होगा. तो बच्चों जनरल एक्सेप्टेंस में हम बताएंगे रेलेवेंस क्या है. रेलेवेंस मीन्स, नाउ व्हाट इज़ रेलेवेंस? रेलेवेंस मीन्स कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तभी रेलेवेंट कहलाता है व्हेन इट प्रोवाइड द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. ये हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है. जो भी हमारे अकाउंटिंग यूज़र्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड है, सेम वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं ये प्रिंसिपल. सो देन ये दे विल बी नोन एज द जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स शुड हैव द फीचर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जनरली इसलिए भी एक्सेप्ट किया जाता है, या जनरली एक्सेप्ट तभी किया जाएगा जब उनमें ऑब्जेक्टिविटी का फीचर होगा. ऑब्जेक्टिविटी हियर मीन्स द प्रिंसिपल्स शुड बी मेड फ्री फ्रॉम बायस. जब आप प्रिंसिपल बना रहे हैं या जिस प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है, उस प्रिंसिपल में कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई पर्सनल जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए. किसी भी सिचुएशन में उसको हम इजीली एप्लीकेबल कर सकें, ऐसा फीचर होना चाहिए. थर्ड वन इज़ फीजिबिलिटी. अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आप यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी फीजिबल. फीजिबिलिटी हेयर मीन्स आप अगर उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अपने अकाउंट्स बनाने में यूज़ करते हैं तो इट विल नॉट इंक्रीज़ योर कॉस्ट. आपकी कॉस्ट को इंक्रीज़ नहीं करेगा. वो प्रिंसिपल अप्लाई करने से आपके बिज़नेस को कोई लॉस नहीं होगा, आपके बिज़नेस में कोई जो है कॉस्ट क्रिएट नहीं होगी. तभी उस प्रिंसिपल को आप एक्सेप्ट करेंगे, उसको आप यूज़ करेंगे. तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी तभी आती है जब हमारे अकाउंट्स में 3 फीचर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ रेलेवेंस. फर्स्ट फीचर इज़ रेलेवेंस होना चाहिए अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स में. सेकेंड फीचर क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए. और थर्ड वन इज़ फीजिबिलिटी. और हम ये बात कहेंगे कि ये जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बने हैं वो अकाउंटेंट्स के एक्सपीरियंस से, रीज़न से बने हैं, और उन्होंने रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फीजिबिलिटी का फीचर उन सभी प्रिंसिपल्स में डाला है. सो वी कैन से दैट दीज प्रिंसिपल्स, ऑल द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज द स्टार्टिंग of the chapter and we have discussed in this lecture accounting principles,
theory base of accounting and nature of accounting principles. In the next videos we will going to discuss the kinds of accounting principles like concepts and conventions. So thank you students.